Good evening, dear friends. Welcome to all of you in our channel Pharma Accelerator. So, in this channel, we have discussed the most important topic of the today, GMP. GMP means good manufacturing practices. It is also part of the GXP. X is a variable in terms of the manufacturing. G extend for the good or P extend for the practices. So, what are the good practices that allowable for the ideal and smooth manufacturing of drug substances and drug product in the manufacturing area. So जीएमपी क्या है? जीएमपी क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग और प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द जो है फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड they are consistently produce the good quality and safety product as per the quality regulation to the different country. So here are we are understand to why the need and what are the goal of the good manufacturing practices. So suppose we are taking for the different categories drug in the manufacturing area. So prevent the cross contamination. So prevent the drug adulteration and mislabeling of the drug. Ensure the product testing. Ensure product safety, quality, and establish the manufacturing under the controlled environmental condition that may notice the temperature as well as humidity, and to infringement and the precise the standardization of the operational of the equipment and facility with respect to their standard operating procedures. Ensure qualified personnels that are involved in the manufacturing. Ensure the quality of raw material. Strengthen the quality assurance system by facilitating the regulatory compliance. So there are the steps from start to end in good laboratory manufacturing practices. Good manufacturing practices. So under the start, we are going to the facility and equipment design for the high layout, hygienic and utility HVAC system. Means they under these guidelines we have prepared the layout and hygienious condition to and its utility HVAC system for proper control of the facility and equipment design for the मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल कंट्रोल में आपका जो हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका हम वेंडर क्वालिफिकेशन कराते हैं, सैंपलिंग कराते हैं और उसकी टेस्टिंग कराते हैं, रिलीज कराते हैं। अप्रूव्ड एसओपी के तहत हम जो है सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को हम ऑपरेट करते हैं। एंट्री एग्जिट प्रोसीजर होता है अपना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में और क्वालिटी कंट्रोल में, जिसमें हम आरएम, इंटरमीडिएट और फिनिश प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवाते हैं और रिलीज देखते हैं और अपने प्रोडक्ट की हम सेफ्टी और इफिकेसी और क्वालिटी को हम एक्सेस करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग भी हमारा जीएमपी में आता है, जिसके अंतर्गत हम जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं और डीआई डाटा इंटीग्रिटी का विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, जिसमें हम एएलसीओ प्लस प्लस का प्रिंसिपल ध्यान रखते हैं और ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए डाटा की इन टर्म्स ऑफ द data clarity, legibility, accuracy and precision. So data must be auditable. Deviation, change control and CAPA investigation and corrective action taken if anything should be observed. So after that batch are going to release, after testing batch going to release by the QA person, compliance review, approval and COA. So the storage and distribution, controlled condition, dispatch and traceability. This is the formal step by step procedure from the start to end of the GMP. मीन्स फर्स्ट वन आपका क्या आ गया कि यूटिलिटी को, प्रोसीजर को, लेआउट को, एचबीएसी सिस्टम को, ये सब हमारा क्या है कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हमारा इक्विपमेंट जो है प्रॉपर कैलिब्रेट होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और हमारे डॉक्यूमेंट जो है बैच प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, ये सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए हर एक स्टेप पे। ये हमारा क्या है क्लीनिंग भी होना चाहिए बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोसेस अलाइन है क्लीनिंग वैलिडेशन का, उसकी टेस्टिंग हमारा रिस्पेक्टिव क्वालिटी
यूनिट करता है या क्वालिटी कंट्रोल लैब करती है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सब भी हम पैरेलल उसका क्वालिफिकेशन कराएंगे। और आरएम, इंटरमीडिएट और फिनिश और प्रोसेस कंट्रोल के जितने सैंपल है वो हमारा मीन वाइल क्यूसी एनालिसिस करेगा और प्रोडक्ट के रिजल्ट देगा। सब कुछ अगर अलाइन द पैरामीटर अंडर द स्पेसिफिकेशन मिलते हैं तो वो सारी चीजों का हमारा क्या है, क्यूए रिलीज करेगा। अगर सपोज हमको कोई रिस्क या और चीजें ऑब्जर्व होती है तो वो सब कुछ भी हमारा क्यूएमएस के थ्रू हैंडल होगा। सो हैंडल होने के बाद वो हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच होगा और मार्केट में जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जीएमपी का साइकिल है। तो सो जीएमपी जो है हमारा वर्क करता है 5P प्रिंसिपल पे। 5P प्रिंसिपल क्या है? पी फॉर प्रोडक्ट, एंड पी सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रोसेस, प्रोसीजर और प्रीमाइसेस। वेयर फोर थिंग्स आर कंट्रोल्ड: प्रोडक्ट कंट्रोल्ड मीन्स की गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स रॉ मटेरियल आपका अच्छा यूज हो रहा है। आपका पीपल क्या है? वेल क्वालिफाइड पीपल्स होने चाहिए आपकी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, वैलिडेटेड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका एक्सपर्ट क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। एंड प्रोसेस जो होगा, जो प्रोसेस होगा वो वेल अलाइन होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और एसओपी जो है वो ऑपरेशन की इंस्ट्रूमेंट के पहले से ही हम लोगों के पास डायरेक्टेड होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट अंडर कैलिब्रेशन कंडीशन में होना चाहिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमको अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है वो प्रॉपरली हमारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप विदाउट फेलियर एनी स्टेप वी आर परफॉर्मिंग द टास्क टू getting the product in terms of the patient safety, efficacy and product quality. Now the premises मीन्स कि जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए वहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉनिटर्ड होनी चाहिए और रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये 5P है: प्रोडक्ट, पर्सन, प्रोसेस, प्रीमाइसेस एंड प्रोसीजर। ये अगर आपके पास जो है तो ये आपके जीएमपी को अलाइन करते हैं। जीएमपी जो वर्क करता है ये क्रॉस लिंक डिपार्टमेंट है अपना। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हार्ट है फार्मा बिजनेस का। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है तो आपके जो क्रॉस फंक्शनल टीम है उनकी भी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, उनका भी क्या कहते हैं, बैच रिलीजिंग का क्राइटेरिया अच्छा है। अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग है तो जाहिर सी बात है हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो प्रॉपरली हमारा बैच रिलीज होता रहेगा मार्केट में, और उन सब बैच जो रिलीज होते रहेंगे इससे हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ पैरेलल होगा। तो सो शेड्यूल एम जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करंटली आज की डेट में उसको करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं, जो कि आज की डेट में कंप्लीटली डिजिटलाइजेशन हो गया है। प्रोडक्ट का, मशीनरी का, आपके प्रोसीजर का, आपके टेस्टिंग का और बैच रिलीज का ऑलमोस्ट डिजिटलाइज हो गया है। और एआई ड्राइवन चीजें ला रही हैं जिसमें कि अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके हम बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सो ये हम लोगों के जो प्रिंसिपल है रोल ऑफ जीएमपी का किन किन चीजों में है, मीन्स की एग्जीक्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है जीएमपी का रोल। इसमें कि हमारा प्रोडक्शन हेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ द क्वालिटी यूनिट फॉर द कॉमर्शियल बैचेज, इसमें जो है हमारा क्वालिटी हेड का रोल है। और हमारा इन सब चीजों का क्वालिटी एश्योरेंस का रोल है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को और क्वालिटी कंट्रोल को मॉनिटर करता है और उनकी एक्टिविटी को एश्योर करता है फॉर प्रॉपर बैच रिलीज इन टर्म्स ऑफ द good quality product. So from these words, I am going to fully aware the 5P principle in the GMP. Who is the responsible for the GMP? Premises, people, procedure, and process, product। ये 5 जो P है ये अपने जीएमपी के सराउंडिंग वर्क करता है, और जीएमपी जो है वो एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए, और उसके लिए जो है आपका प्रोडक्शन हेड जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल टेक्निकल स्टाफ जो है इससे एसोसिएटेड है वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होगा। और इन दोनों को जो बीच में ब्रिज है, अगर कोई क्यूएमएस आता है उसके लिए क्यूएमएस डिपार्टमेंट रोल प्ले करता है, और क्यूए जो होता है प्रोडक्ट के रिलीज में और कंप्लायंस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से अवेयर कराया गया है, जो कि
जीएमपी है और ये फार्मा का हार्ट है। मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फार्मा के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, फार्मा के लिए, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। So from these words, I am going to sign off the presentation of the good manufacturing practices. Hope so you all are aware about the 5P principle under the GMP. What are the premises, facility, process, all qualified person involved I have discussed in this video. So please keep keen and understanding about the facts and importance of the GMP and GXP in pharmaceutical industry. So from these of words, I would like to sign off my presentation. We will meet you soon with new product and application of pharmaceutical industry. So I would like to thank you for watching, liking, commenting, and subscribing my channel. You must be subscribed that may promote the content and promote the content makers. So please subscribe it at your own end and enjoy the my channel Pharma Accelerated and spread everywhere where you can spread to achieve the good practices. Thank you.